يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فا کلمہ اور عین کلمہ علت کر لینے کے بعد آج ہم لام کلمہ علت واو اور یا کریں گے. پہلے ہم لام کلمہ علت واو کریں گے جس کی اگزامپل دعا ہے. جب بھی لام کلمہ واو ہوگا تو وہ الف سے بدلا ہوا ہوگا. دعا فعلا کے وزن پر دعوا ہے. واو الف میں بدل گیا اور یہ دعا ہو گیا. دعا کے معنی بلانا، پکارنا، دعا مانگنا، دعوت دینا وغیرہ ہے. چلیں اب ہم گردان بناتے ہیں. دعا دوسرے ہی صیغے میں اب دیکھیں جمع ساکنین ہو گیا. ایک الف علت واو ہے اور دوسرا صیغے کا الف ہے. تو اب ہم علت کو واپس لے آئیں گے اور یہ دعوا ہو جائے گا. اب جمع مذکر کا صیغہ کیسے ہوگا؟ دعوو. اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو پڑھنے کی آسانی کے لیے علت اپنی حرکت کے ساتھ ڈراپ ہو جائے گی اور یہ دعو ہو جائے گا. غائب مؤنث واحد دعت علت اب ڈراپ ہی ہے. دعتا چھٹے صیغے کا رول یاد ہے نا کہ لام کلمہ ساکن کرنا ہے، لیکن ہم تو لام کلمہ جو کہ واو ہے تیسرے صیغے میں ہی ڈراپ کر چکے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم علت کو پھر واپس لے آئیں گے لام کلمہ ساکن کرنے کے لیے. یہ دعونا ہو گیا اور اب پوری گردان میں علت رہے گی. حاضر کے صیغوں میں آ جائیے. دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا. اس کی ہم اور ایگزامپلز کرتے ہیں. تلا اس کے معنی سنانا، پڑھنا، پیچھا کرنا. گردان کیسے ہوگی؟ تلا، تلاوا، تسنیہ کا صیغہ. دیکھیں جمع ساکنین ہونے کی وجہ سے علت واپس آ گئی ہے اور یہ تلاوا ہو گیا. تیسرا صیغہ کیا ہوگا؟ تلوو. یہاں پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو علت کو ہم ڈراپ کر دیں گے اور یہ کیا ہو جائے گا؟ تلو. پڑھنے کی آسانی کے لیے علت ہم نے ڈراپ کر دی. تلو. تلت، تلتا چھٹا صیغہ، اس کا رول ہے لام کلمہ ساکن کرنا. ہماری علت ڈراپ ہے ابھی تک تو ہم چھٹے صیغے میں علت کو واپس لے آئیں گے اور یہ ہو جائے گا تلونا. تلوتا، تلوتما، تلوتم، تلوتی، تلوتما، تلوتن، تلوتو، تلونا. رجا یہ بھی ایسے ہی ہے. لام کلمہ علت واو ہے، وہ الف سے بدلا ہوا ہے اور رجا کے معنی ہیں اس نے امید کی. چلیں اس کی گردان بناتے ہیں. رجا، رجوا. دیکھیں یہاں پر دوسرے صیغے میں علت کو ہم واپس لے آئے ہیں. کیوں لے آئے ہم علت کو واپس؟ اس لیے کہ جمع ساکنین ہو رہا تھا. پھر وہی سیم پرابلم ہو جائے گی، ہم پڑھ نہیں سکیں گے.
उस वजह से हम इल्लत को वापस ले आते हैं, रजावा। तीसरे सीगे में ये हो जाएगा रजावू। यहाँ पे पढ़ने की आसानी के लिए हम इल्लत को ड्रॉप कर देंगे और ये हो जाएगा रजाओ। गायब मुअन्नस वाहिद हो जाएगा रजत, तस्निया रजता। छठा सीगा आ गया, लाम कलमा हमने साकिन करना है। लाम कलमा यहाँ पर वाव है, हम इल्लत को वापस ले आएंगे क्योंकि इस सीगे का रूल पूरा करना है ना हमने। तो ये हो जाएगा रजाओ ना, और फिर उसके आगे नीचे तक गर्दान में इल्लत रहेगी और लाम कलमा पे सकून रहेगा। रजाउता, रजाउतुमा, रजाउतुम, रजाउती, रजाउतुमा, रजाउतुन्ना, रजाउतु, रजाउना। अफा, अफा के मायने माफ करना, छोड़ देना। अफा, अफावा, इल्लत वापस आ गई। तीसरा सीगा अफाओ, यहाँ इल्लत ड्रॉप हो गई पढ़ने की आसानी के लिए। दूसरे में वापस आई है और तीसरे में ड्रॉप हो गई है। अफत, अफता, अफाओ ना। अब छठे सीगे में इल्लत वापस आ गई है, नीचे तक रहेगी। अफाउता, अफाउतुमा, अफाउतुम, अफाउती, अफाउतुमा, अफाउतुन्ना, अफाउतु, अफाउना। देखें, अगर आप हर सीगे की जरूरत को समझ लेंगे तो इल्लत किस सीगे में आ रही है और किस सीगे में जा रही है, आपको याद रखना मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। दाआ की गर्दान आप ऐसे याद रखें कि इल्लत के 3 स्टेप्स हैं। दूसरे सीगे में इल्लत आएगी, फिर तीसरे सीगे में ड्रॉप हो जाएगी और फिर छठे सीगे में वापस आ जाएगी, फिर पूरी गर्दान में आखिर तक रहेगी। लाम कलमा वाव की हम कुछ वोकैबुलरी दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हम करेंगे लाम कलमा इल्लतिया। लाम कलमा इल्लतिया अलिफ में चेंज नहीं होता, ये या ही रहती है। अब तक आपने देखा कि हमने फेल की हर फैमिली की एक ही की एग्जाम्पल रखी है, मगर लाम कलमा इल्लतिया की 2 की एग्जाम्पल्स हैं, रमा और लकिया। रमा फ़ाअला के वजन पर है और लकिया फ़ाइला के वजन पर है। पहले हम रमा को देखते हैं। रमा के मायने फेंकना, मारना और इल्जाम लगाना है। फ़ाअला के वजन पर ये रमाया है। लाम कलमा इल्लतिया में जब आइन कलमा पर जबर हो और लाम कलमा पर भी जबर हो तो वो दोनों मिलकर खड़ा जबर हो जाते हैं और ये लिखने और पढ़ने में ऐसे रमा हो गया। खड़ा जबर आइन और लाम के दरमियान में आता है, यहाँ पर मीम और या के दरमियान में आएगा। अब गर्दान बनाते हैं। रमा, रमया, इसका जमा का सीगा हो जाएगा रमयू। ये पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो हम इल्लत ड्रॉप कर देंगे। यहाँ इल्लत को ड्रॉप करते वक्त हम आइन कलमा के एराब भी सेट करेंगे। यहाँ देखिए, रा फा कलमा है, मीम आइन कलमा है और या लाम कलमा है, तो हमें मीम के यानी ऐन कलमा के एराब सेट करने हैं। अगर या से पहले जबर हो और या पर पेश हो
तो साउंड इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। जबर की साउंड आ और पेश की या के साथ यू होगी और साउंड कैसे निकलेगी? आ यू औ। आ यू औ से ये रमौ हो जाएगा, यानी आइन कलमा पर जबर ही रहेगा। गायब मुअन्नस वाहिद का सीगा हो जाएगा रमत, रमता। छठा सीगा और छठे सीगे का रूल लाम कलमे को सकून देना है। इल्लत तो हम ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन लाम कलमा को सकून देने के लिए इल्लत वापस आ जाएगी और ये रमई ना हो जाएगा। इल्लत जो अब वापस आ गई है नीचे तक गर्दान में, अब वो वापस ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। रमैता, रमैतुमा, रमैतुम, रमैती, रमैतुमा, रमैतुन्ना, रमैतु, रमैना। रमा की गर्दान में इल्लत के 2 स्टेप्स हैं। तीसरे सीगे में इल्लत ड्रॉप हो जाएगी और छठे सीगे में वापस आ जाएगी और फिर पूरी गर्दान में रहेगी। आप ये बात नोट कर रहे हैं कि जो इल्लत की चेंजेस होती हैं वो छठे सीगे तक ही होती हैं और उसके बाद बाकी गर्दान स्मूथ रहती है। अब कुछ इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। हदा, हदा फ़ाअला के वजन पर हदाया था। जबर प्लस जबर इज इक्वल टू खड़ा जबर और ये हदा हो गया। हदा के मायने हिदायत देना, रहनुमाई करना है। चलें इसकी गर्दान बनाते हैं। हदा, हदाया, हदायू। यहाँ पर पढ़ने की आसानी के लिए इल्लत को हम ड्रॉप करेंगे और कौन सी साउंड इक्वेशन लगाएंगे हम? आ यू औ, हदौ। गायब मुअन्नस वाहिद का सीगा हो जाएगा हदत, हदता। छठा सीगा आ गया। लाम कलमा साकिन करने के लिए इल्लत वापस आ जाएगी और ये हो जाएगा हदैना, हदैता, हदैतुमा, हदैतुम, हदैती, हदैतुमा, हदैतुन्ना, हदैतु, हदैना। कफा, कफा के मायने काफी होने के हैं। कफा, कफया, कफयू। यहां पर हम इल्लत ड्रॉप करेंगे। आयु औ की इक्वेशन लगाएंगे। आयु औ, कफौ, कफत, कफता। छठा सीगा आ गया। इल्लत वापस लेकर आएंगे, उसको सकून दे देंगे और ये हो जाएगा कफैना, कफैता, कफैतुमा, कफैतुम, कफैती, कफैतुमा, कफैतुन्ना, कफैतु, कफैना। अब हम कुछ ऐसे अफ़ाल देखेंगे जिनमें डबल इल्लत है। फॉर एग्जाम्पल अता, यहां पर फा कलमा और लाम कलमा दोनों ही इल्लत हैं, तो इसको हम कहेंगे डबल इल्लत है। यहां अता के मायने हैं आना। अता, अतया, अतयू। यहां पे इल्लत ड्रॉप करेंगे, साउंड इक्वेशन लगाइए। आ यू औ, अतौ, अतत, अतता। छठा सीगा आ गया। लाम कलमा सुकून देना है, इल्लत को वापस लाएंगे। अतैना, अतैता, अतैतुमा, अतैतुम।
अतैति, अतैतुमा, अतैतुन्ना, अतैतु, अतैना। वका, वका के मायने उसने बचाया, और ये भी डबल इल्लत है। वका, वकया, वकयू, इल्लत ड्रॉप करेंगे, आ यू औ, वकौ। वकत, वकता, छठा सीगा, इल्लत वापस, वकैना। वकैता, वकैतुमा, वकैतुम, वकैति, वकैतुमा, वकैतुन्ना, वकैतु, वकैना। अब है राआ, इसके मायने हैं देखना, राय देना। राआ, राया, रायू, इल्लत ड्रॉप, आयु औ, राओ। राअत, राअता, छठा सीगा, इल्लत वापस, राअयना। राअयता, राअयतुमा, राअयतुम, राअयति, राअयतुमा, राअयतुन्ना, राअयतु, राअयना। अवा, अवा को देखिए, ये तो तीनों ही इल्लतें हैं, हमजा, वाव और या, यही तो तीन हमारी इल्लतें हैं। अवा के मायने हैं उसने पनाह ली। अवा, अवया, अवयू, इल्लत ड्रॉप, साउंड इक्वेशन लगाइए, आ यू औ, अवौ। अवत, अवता, अवैना, इल्लत वापस, लाम कलमे पे सकून। अवैता, अवैतुमा, अवैतुम, अवैति, अवैतुमा, अवैतुन्ना, अवैतु, अवैना। आपने इन गर्दानों में देखा कि डबल इल्लत वाले अफाल की गर्दानें भी बिल्कुल रमा जैसी ही बनी हैं, जो कि हम इनको रमा की फैमिली के अंडर कर रहे हैं, तो इन सब पर रमा वाला रूल ही अप्लाई होगा। एक चीज यहां समझने वाली ये है कि या से पहले पेश नहीं पढ़ा जाता और वाव से पहले जेर नहीं पढ़ा जाता। असल में इन दोनों की साउंड क्लैश करती है, वाव और या की, या यूं कह लें कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। हम लाम कलमा इल्लत या की रमा की फैमिली की कुछ वोकैबुलरी आपको दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब हम करेंगे लाम कलमा इल्लत या की दूसरी की एग्जाम्पल, यानी लकिया। लकिया के मायने वो मिला। लकिया फाइला के वजन पर है। चले इसकी गर्दान बनाते हैं। लकिया, लकिया, लकियू। यहां पर भी पढ़ने की आसानी के लिए हम इल्लत को ड्रॉप कर देंगे, और इल्लत को ड्रॉप करते वक्त हम आइन कलमा के एराब सेट करेंगे। या से पहले जेर हो, यानी आइन कलमा पर जेर और या पर पेश, तो साउंड इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। जेर की साउंड ई और पेश की साउंड या के साथ यू, ई यू ऊ। ई यू ऊ के साथ ये हो जाएगा लकू, यानी आइन कलमा पर पेश आएगा। यहां पर गायब मुअन्नस वाहिद पर इल्लत लौट आएगी, क्योंकि जब आइन कलमा पर जेर होगा तो इल्लत ड्रॉप नहीं होगी, तो ये हो जाएगा लकियत। लकियता,
लकीना। छठा सीगा लाम कलमा साकिन। लकीता, लकीतुमा, लकीतुम, लकीती, लकीतुमा, लकीतुन्ना, लकीतु, लकीना। लकिया की गर्दान में भी इल्लत के 2 स्टेप्स हैं। तीसरे सीगे में इल्लत ड्रॉप हो जाएगी और चौथे सीगे में वापस आ जाएगी। अगर देखा जाए तो सिर्फ तीसरे सीगे में ही इल्लत ड्रॉप हुई है, बाकी पूरी गर्दान में तो मौजूद है। लकिया की कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। नसिया मायने वो भूला। नसिया, नसिया, नसियू। पढ़ने की आसानी के लिए हम इल्लत को ड्रॉप कर देंगे और अब साउंड इक्वेशन हमारी क्या लगेगी? ई यू ऊ, नसू, यानी ऐन कलमा पे पेश आएगा। यहां पर ऐन कलमा क्या है? सीन है। नसू, नसीयत, नसीयता, नसीना। लाम कलमा साकिन हो गया। नसीता, नसीतुमा, नसीतुम, नसीती, नसीतुमा, नसीतुन्ना, नसीतु, नसीना। रदिया वो राजी हुआ। रदिया, रदिया, रदियू। इल्लत को हम ड्रॉप करेंगे। ई यू ऊ, रदू। हम साउंड इक्वेशन ई यू ऊ की लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रदू। रदियत, रदियता। छठा सीगा लाम कलमा साकिन। रदीना, रदीता, रदीतुमा, रदीतुम, रदीती, रदीतुमा, रदीतुन्ना, रदीतु, रदीना। लकिया की फैमिली में भी कुछ अफाल हैं जो कि डबल इल्लत हैं। तो चले अब हम कुछ अफाल की गर्दान बनाते हैं जो कि डबल इल्लत हैं। हय्या यानी वो जिंदा रहा। यहां ख्याल रहे फा कलमा हा है, आइन कलमा या है और लाम कलमा भी या ही है। डबल इल्लत है ना। हय्या, हय्या, हय्यू। इल्लत को हम यहां ड्रॉप कर देंगे। ई यू ऊ की इक्वेशन लगाएंगे और ये हो जाएगा हयू। हय्यत, हय्यता, हयीना, हयीता, हयीतुमा, हयीतुम, हयीती, हयीतुमा, हयीतुन्ना, हयीतु, हयीना। सवेया वो बराबर हुआ। सवेया, सवेया, सवेयू। इल्लत ड्रॉप ई यू ऊ, सवू। सवेयत, सवेयता, सवेना, सवेता, सवेतुमा, सवेतुम, सवेती, सवेतुमा, सवेतुन्ना, सवेतु, सवेना। लाम कलमा या लकिया फैमिली की हम कुछ विकैबुलरी दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपने रमा और लकिया की साउंड इक्वेशन को अच्छी तरह से याद रखना है। रमा है, खड़ा जबर अगर है तो तीसरे सीगे में आ यू औ की इक्वेशन लगेगी और अगर लकिया है तो तीसरे सीगे में इल्लत ड्रॉप होते हुए ई यू ऊ की इक्वेशन लगेगी। और इसके साथ ही हमारा फेले माजी कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। फेले माजी में हमने अफाल की 4 फैमिलीज देखी हैं। अफाले सहीहा, अफाले हमजा,
अफ़ाले मुशद्दद और अफ़ाले इल्लत। अफ़ाले सहीहा की एग्जाम्पल्स फ़अला के वज़न पर फ़अला ही है, फ़इला के वज़न पर समिया है और फ़उला के वज़न पर करूमा है। अफ़ाले हमज़ा की एग्जाम्पल्स फ़ा कलमा हमज़ा अख़ज़ा, आइन कलमा हमज़ा सअला और लाम कलमा हमज़ा कराआ है। अफ़ाले हमज़ा की गर्दानों में कोई चेंजेस नहीं हैं, अफ़ाले सहीहा की तरह ही वो तमाम बनी हैं। अफ़ाले मुशद्दद की एग्जाम्पल ज़न्ना है। ज़न्ना में छठे सीगे पर आकर शद खुल जाती है। और फिर उसके बाद आते हैं अफ़ाले इल्लत। अफ़ाले इल्लत में फ़ा कलमा इल्लत वाव की एग्जाम्पल वजदा है और फ़ा कलमा इल्लत या की एग्जाम्पल यबिसा है। वजदा और यबिसा इनकी माजी की गर्दानों में भी कोई चेंजेस नहीं है। आइन कलमा इल्लत वाव इसकी की एग्जाम्पल काला है। काला में आपने देखा था कि छठे सीगे में आकर इल्लत ड्रॉप हुई और फ़ा कलमा को पेश दे दिया। आइन कलमा इल्लत या की एग्जाम्पल बाआ है। बाआ में भी आपने देखा कि छठे सीगे पर आकर इल्लत ड्रॉप हो गई और फ़ा कलमा को ज़ेर दे गई। उसके बाद आता है लाम कलमा इल्लत वाव। लाम कलमा इल्लत वाव की एग्जाम्पल दाआ है। दाआ में आपने देखा कि इल्लत दूसरे सीगे में आती है और तीसरे में चली जाती है और उसके बाद छठे सीगे में लौट के आ जाती है, यानी टोटल 3 स्टेप्स हैं। लाम कलमा इल्लत या की 2 की एग्जाम्पल्स हैं रमा और लकिया। रमा में तीसरे सीगे में इल्लत ड्रॉप हो जाएगी और छठे सीगे में वापस आ जाएगी। टोटल 2 स्टेप्स हैं। जबकि लकिया में तीसरे सीगे में इल्लत ड्रॉप होगी और चौथे सीगे में वापस आ जाएगी। लकिया के भी टोटल 2 स्टेप्स हैं। तमाम फैमिलीज की एग्जाम्पल्स को याद रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम आगे उनके हवाले से ही बात करेंगे। चलें अब हम कुरान में एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 20। मशाओ ये किस फैमिली का है, रमा की या लकिया की? मशाओ, रमाओ, जमा गायब का सीगा है मशाओ, ये रमा की फैमिली है। लाम कलमा इल्लत या, मशा के मायने चलने के हैं। आयत 34 पे आ जाइए। अबा, खड़ा जबर ही आपको ये बता रहा है कि ये रमा की फैमिली है। अबा के मायने इनकार करना, उसने इनकार किया। आयत 74। कसत, ये भी दाआ की फैमिली है। कसा, दाआ की फैमिली पे इल्लत लाम कलमा वाव है। कसत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। इसके मायने हैं सख्त हो जाना। इसका फाइल कहाँ है? देखिए फेल के बाद कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, सख्त हो गए तुम्हारे दिल। कुलूबुकुम, कुलूबु ये फाइल है कसत का। 61 पे देखिए असाओ, जी रमाओ, रमा की फैमिली है ये। असा, फा कलमा आइन, आइन कलमा स्वाद और लाम कलमा या, रमा की फैमिली। असा, उसने नाफरमानी की। असा के मायने हैं असाओ, तो उन सब ने नाफरमानी की। सेम सूरा आयत नंबर 102। शराओ,
یہ بھی رما کی فیملی ہے. جمع مذکر کا صیغہ ہے غائب کا, علت ڈراپ ہوئی ہوئی ہے یا. شرو, رمو. ہر باپ کی اور ہر فیملی کی ایگزامپل آپ کو اسی لیے کرائی گئی ہے کہ آپ اس کی ساؤنڈ سے, اس کے وزن سے دوسرے افعال کو پہچان سکیں جو ان فیملی کے ہیں. شرو, اس کا مطلب ہے بیچنا, خریدنا. ان سب نے بیچا. سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 117 پہ پلیز آئیے. قضا, قضا کے بھی بہت سے معنی ہیں. فیصلہ کرنا, یہ بھی رما کی فیملی ہے. قضا فعل ہے, اس کا فاعل اسی کے اندر ہے کیونکہ باہر آپ کو نظر نہیں آ رہا. امرن, اس کا مفعول ہو گیا کیونکہ فعل کے بعد اسم آ رہا ہے جو کہ نسبی حالت میں ہے. آیت 186 پہ پلیز آئیے. دعانی, دعا آپ کا لام کلمہ علت واو کی ایگزامپل ہے. یہ دعا, دعا فعل ہوا اور نی یہ ضمیر ہے متکلم کی. یاد ہے آپ کو یہ بتایا تھا جب ہم ضمائر کر رہے تھے کہ یا اسم کے ساتھ لگتی ہے اور نی فعل کے ساتھ لگتی ہے. نی میں سے یا ڈراپ ہو گئی اور نون کے نیچے زیر کو بٹھا گئی ہے. اس نی کو ہم نون وقایا کہتے ہیں کیونکہ اس سے فعل کی سپیلنگ برقرار رہتی ہے. تو یہاں پر یہ نی نون وقایا مفعول بن گیا دعا کا. 187 میں پلیز دیکھیے. عفا عنکم, عفا یہ کون سی فیملی ہے؟ لام کلمہ علت واو دعا کی فیملی ہے. لام کلمہ کی علت جو ہے وہ پہچاننا آسان ہے کیونکہ صرف واو ہے جو کہ الف میں چینج ہوئی ہوئی ہے, یا تو ویسے ہی رہتی ہے. عفا, اس نے معاف کیا. آیت 205 پہ پلیز آئیے. سعا, یہ بھی رما کی فیملی ہے. اس نے کوشش کی. فی الارضی, زمین میں. بقرہ کی ہی آیت 278. بقیہ, جی یہ کون سی فیملی ہے؟ لکیہ کی فیملی ہے. لام کلمہ علت یا, وہ باقی رہا. سورہ آل عمران آیت نمبر 38. دعا, دعا آپ کی علت واو کی ایگزامپل ہے. دعا دعا کی زکریا نے. سیم سورہ آیت 118. بدت, تا پہ سکون ہے, عارضی کسرہ لگایا ہوا ہے آگے میں لانے کے لیے. یہ دعا کی فیملی کا ہے. بدا, بے دال واو, دعا کی فیملی ہے, علت واو ہے, لام کلمہ. بغداؤ, یہ اس کا فاعل ہوا. اس کے معنی ہیں, بدا کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا, واضح ہونا, نمایاں ہونا. 119 میں ہے خلو, یہ بھی دعا کی فیملی ہے. غائب مذکر جمع کا صیغہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13. نسو, اب نسو کو دیکھ کے پہچانیے کہ یہ کون سی فیملی ہے, رما کی ہے یا لکیہ کی ہے. یہ لکیہ کی فیملی ہے. اگر رما کی فیملی ہوتی تو کیسا ہوتا؟ رمو, نسو, ہے نا, سین کے اوپر زبر ہوتا. لیکن یہ کس کی فیملی ہے؟ لکیہ کی فیملی میں سے ہے. لکو, نسو, نسیا, وہ بھولا. مائدہ کی ہی آیت 71 نکالیں. فا امو, جی کون سی فیملی ہے یہ؟ فا حرف ہے, اس کو الگ کر دیجئے. امو. لکو, یہ لکیہ کی فیملی ہے. امیہ, وہ اندھا ہوا. سورہ اعراف آیت نمبر 166. اتاؤ,
ये दाआ की फैमिली है, दाओ। लाम कलमा इल्लत वाव है, इसके मायने हैं हद से निकलना, हद से तजावुज करना। अनाम की आयत 84, हदैना। ये रमा की फैमिली है, हदैना। मुतकल्लिम जमा का सीगा है, हमने हिदायत दी। सूरे अनफाल की आयत नंबर 17, रमायता। जी, लाम कलमा इल्लत या, रमा, जो कि की एग्जाम्पल है। रमायता सीगा क्या है? हाजिर मुजक्कर वाहिद। और इसी आयत में आगे रमा भी आया हुआ है। अनफाल की ही आयत 38, मदद। ये आपकी रमा की फैमिली है, मदा। इसके मायने हैं छोड़ना, रुखसत हो जाना, चले जाना, मुंतकिल होना। सूरे कहफ आयत 62, लकीना। ये आपकी लकिया का ही है, मुतकल्लिम जमा का सीगा। की एग्जाम्पल जो आपकी है लकिया। लाम कलमा इल्लत या। 63 में आप देखें, रआयता, आ हटा दीजिए, रआयता कौन सा सीगा है ये? वाहिद मुजक्कर हाजिर का। तुमने देखा, ये हमने रमा की फैमिली में ही किया था ना, डबल इल्लत में। और इसी के आगे अवैना, ये ट्रिपल इल्लत है, तीनों ही इल्लतें हैं। आवा, अवैना कौन सा सीगा है? ये भी मुतकल्लिम का जमा का सीगा है। फिर आगे नसीतू आ रहा है, ये लकिया की फैमिली है। सेम सूरा आयत 80, फखशीना। फा हटा दीजिए, यह हर्फ है, खशीना। जी, ये लकिया की फैमिली है, खशिया, वो डरा। सीगा कौन सा है? मुतकल्लिम जमा। सूरे बनी इसराइल आयत नंबर 97, खबत। ये दाआ की फैमिली है, लाम कलमा इल्लत वाव। इसके मायने हैं बुझ जाना या ठंडा हो जाना। ये सीगा क्या है? गायब मोन्नस का है, वाहिद का सीगा। सूरे बनी इसराइल की ही आयत नंबर 19, साआ। रमा की फैमिली है ये, उसने कोशिश की। सूरे गाशिया आयत नंबर 1, अता का। ये कौन सा फेल है और कौन सी फैमिली है? ये रमा की फैमिली है, अता। लेकिन इसको आप अक्सर इस तरह लिखा हुआ देखते हैं, जब आप ता के ऊपर खड़ा जबर देख रहे हैं, इसका मतलब यहां पर एक लेटर कोई और भी है जो कि इल्लत है। फा कलमा हमजा, आइन कलमा ता और लाम कलमा या है। सूरह शम्स पे प्लीज आ जाएं। इसकी आयत नंबर 2 को देखिए, तलाहा। इसको देखिए, ये दाआ की फैमिली है, तला। ता, लाम और वाव। लाम के ऊपर खड़ा जबर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर एक और लेटर भी है जो कि इल्लत वाव है। ज्यादातर जो इस तरह से लिखे हुए अफाल आते हैं उनमें जो इल्लत होती है वो या होती है, लेकिन कुछ के अंदर इल्लत वाव भी होती है, जिस तरह से ये है तला। आयत 5 में देखिए, बनाहा। ये रमा की फैमिली है, बना, उसने बनाया। बे, नून और या, बना, रमा की फैमिली। और हा इसका मफूल हो गया। 6 में देखिए, तहाहा। ये भी दाआ की फैमिली है,
ता, हा और वाव। सूरह दुहा आयत नंबर 3। कला, ये भी रमा की फैमिली है, इसके मायने वो नाराज हुआ। सूरह नाजियात आयत नंबर 15। अता का, ये भी अता है, रमा की फैमिली। अता, हमजा ता और या, फेल है ये और इसका फाइल इसी के अंदर है, का इसका मफूल है। 17 में देखिए, तगा, उसने सरकशी की, ये भी रमा की फैमिली का है। आयत 30 में देखिए, दहा, दहा, या फिर देखिए हा के ऊपर खड़ा जबर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक और लेटर है। दाल, हा और वाव, ये भी दाआ की फैमिली है। दहा, इसके मायने है उसने फैलाया, बिछाया, और हा इसका मफूल हो गया। बास लाम कलमा इल्लत के आफाल जो हैं वो लिखने में इस तरह से भी आते हैं। इल्लत जो है, जो आपको लिखी हुई नजर नहीं आ रही, वो वाव भी हो सकती है और या भी हो सकती है। खड़ा जबर जो है इस तरफ निशानदही कर रहा होता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 4। सागत, ये रमा की फैमिली है, इसके मायने हैं कान धरना, माइल होना। सूरह हदीद आयत नंबर 27। रआउहा, ये भी रमा की फैमिली है, रमाओ, रआओ, साउंड कर रहा है ना। राआ, इसके मायने हैं निगरानी करना, ख्याल रखना। रआउ फेल हुआ, फाइल इसी के अंदर, और हा इसका मफूल। सूरह जुमर आयत 57। हदानी, हदा, ये आपकी रमा की फैमिली है, और नी जो है ये इसका मफूल हुआ। दमाइर में हमने किया था ना, इसको हम नूने वकाया कहते हैं। फेल के साथ नी आता है और या इस्म के साथ आता है। दुखान की आयत 29 पे प्लीज आइए। बकत, ये भी रमा की फैमिली है, वो रोया, बका, ये बकत है, वाहिद मोनस का सीगा है, गायब का। सूरह निसा आयत 45। कफा, ये रमा की फैमिली है, वो काफी हुआ। सूरह बय्यना आयत नंबर 8। रदी अल्लाहु अनहुम, रदिया आपका लकिया की फैमिली है, ये फेल हुआ, इसके मायने हैं वो राजी हुआ। यहाँ राजी होने का अमल कौन कर रहा है, फाइल क्या है। रदिया के बाद एक इस्म है जो कि रफ़ई हालत में है। अल्लाह रदिया के फाइल हैं। राजी हुआ अल्लाह अनहुम, उनसे, वा और रदू अनहु, रदू, ये भी सेम फेल है, गायब मुजक्कर जमा का सीगा है। रदू, वो राजी हुए, अनहु, उससे, यानी अल्लाह से। अल्लाह राजी हुआ उनसे और वो राजी हुए उससे। सूरह मोमिन की आयत नंबर 45। फा वकाहू, फा को हटा दीजिए, यह हर्फ है। वका, ये रमा की फैमिली है। काफ के ऊपर खड़ा जबर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक हर्फ और है। खड़ा जबर है ना। वका रमा की फैमिली का है, हु उसका मफूल है और अल्लाह फाइल। वका के मायने हैं उसने बचाया, बचा लिया उसको अल्लाह ने। सूरह ताहा आयत 121। इसमें एक तो असा है, रमा की फैमिली, और दूसरा है फा गवा। फा हटा दीजिए, वो हर्फ है। गवा, ये भी रमा की फैमिली का है, वो भटक गया। और इसी की आगे आयत में हदा भी है। सूरह क़ाफ की आयत नंबर 15। फा आयीना, ये लकिया की फैमिली है, फा को हटा दीजिए, उसके बाद ये
आयीना, लकिया की फैमिली है अय्या, वो थका। सूरह कलम आयत नंबर 17, बलौना, ये आपकी दाआ की फैमिली है, लाम कलमा इल्लत वाव, बला, उसने आजमाया, बलौना, हमने आजमाया। सूरह तलाक आयत नंबर 8, अतत, ये भी दाआ की फैमिली है, अता, लाम कलमा इल्लत वाव, उसने सरकशी की। सूरह नजम आयत नंबर 1, हवा, ये रमा की फैमिली है, इसके मायने हैं वो गिरा। यही मादा लखिया के वजन पर भी है, हवेया, उसके मायने हैं उसने ख्वाहिश की, ख्वाहिश करना। तो हवा जो है वो दोनों ही वजन पर है, रमा पर भी है और लकिया पे भी है, हवा और हवेया। आयत 2 में देखिए, गवा, ये भी रमा की फैमिली है, इसके मायने वो भटका। सेम सूरा आयत नंबर 8 में देखिए प्लीज, दना, ये कौन सी फैमिली है? दाआ की फैमिली है ये, वो करीब हुआ, लाम कलमा इल्लत वाव। आयत 11 में राआ, ये रमा की फैमिली है, उसने देखा। सूरह हशर आयत नंबर 7, नहा कुम, ये देखें यहाँ पर नहा रमा की फैमिली है और ये इस तरह से लिखा हुआ है, हा के ऊपर खड़ा जबर इस बात को इंडिकेट कर रहा है। नहा रमा की फैमिली, उसने रोका, मना किया। नहा फेल है, फाइल इसी के अंदर और कुम इसका मफूल। सूरह हज आयत नंबर 5, रबत, ये दाआ की फैमिली है, रबा यानी लाम कलमा इल्लत वाव है, इसके मायने बढ़ना, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, दाआ की फैमिली। सूरह कसस आयत नंबर 76, फा बगा, फा को हटा दीजिए वो हर्फ है, बगा, ये रमा की फैमिली है, इसके मायने हैं ख्वाहिश करना, जुल्म करना, चाहना, तलाश करना, नाइंसाफी करना, ज्यादती करना। काफी सारे मायने हैं इसके, यहां पर इसके मायने जुल्म करने के हैं। सेम सूरा आयत 63, गवैना, ये रमा की फैमिली है, गवा, उसने गुमराह किया और ये जो है मुतकल्लिम जमा का सीगा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। يا حامل القرآن يا حامل القرآن